बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है अल्केन्स और पैराफिन्स। ठीक है, अल्केन्स और पैराफिन्स। अल्केन्स, दीज आर द कंपाउंड्स कंटेनिंग सिंगल बॉन्ड in the chain of hydrocarbons. Means all the carbons in the hydrocarbon chain, they all will be bonded through a single bond with each other. Okay, alkanes, another name of alkane is paraffins. Paraffins mean the compounds of less affinity. Affins for affinity, para less, so it means they are the molecules or the compounds of less affinity, means they are less reactive or least reactive compounds of all the hydrocarbons. They have general formula CnH2n plus 2. Okay, for example, here n stands for number of carbon atoms. Here n stands for number of carbon atoms. For example, means n is the number of carbon atoms. For example, if we are having one carbon atoms in a compound, then what will be the number of hydrogen atoms? 2 into n 1 है, so 2 into 1 plus 2, so it will be equal to 4. So we have the molecular formula of the compound CH4. Similarly, suppose we are having two carbon atom compound like ethane. So if we are having number of carbon atoms 2, then what is the formula of the alkane? That will be H2 into 2 plus 2, so it will be C2H 2 to the 4 plus 2 6. So the formula of, or the molecular formula of the next member having two carbon atoms in a compound, that will be C2H6, and this is ethane. Okay, now alkanes, in all alkanes, as we know that there is a double bond. For example, if I write CH3 over here, which is an ethane, then all the carbon atoms, the two carbon atoms will have sp3 hybridization in that, and if it is having sp3 hybridization, so all the carbons will have tetrahedral geometry with the bond angle 109.5. These are hydrocarbons which are of saturated type. Saturated means they are fully satisfied, all the valencies of carbons are fully satisfied with the hydrogen. For example, in case of CH3, you will see that all the 4 valencies of carbon are satisfied by with hydrogen. Okay, so these are the compounds with less affinity or less reactive because they are the saturated one. Now their general methods of preparation. First of all, we must know the how alkanes are prepared. The first method is hydrogenation of unsaturated hydrocarbon. Unsaturated hydrocarbons means alkenes and alkynes. Okay, the compounds having double or triple bonds. Okay, H.C stands for hydrocarbons. The first reaction is Sabatier-Sanders reaction. Hydrogenation of unsaturated reaction is also called as, its industrial name or its specific name is said as Sabatier-Sanders reaction. In this reaction, an unsaturated hydrocarbon, for example, R stands for any alkyl group, and this is a double bond containing compound which is an alkene. When hydrogen in the presence of nickel catalyst is added on this alkene, then double bond, the pi bond of the double bond will break, and the two hydrogen atoms of hydrogen molecule will be added to these two carbon atoms at 200 to 300 degrees C, and we will get an alkene. Okay, palladium can also be used with nickel, or may be used. If we will not use nickel, we can also use platinum and palladium, but these are the expensive metals, so we will generally use we are generally using nickel as a catalyst in these reactions. For example, if we are having ethene, now look at this ethene molecule. As you know, there is one sigma bond and there is an other pi bond. Pi bond, which is a loose bond, so the pi electrons will break, or the bond between the two carbon atoms, that is the pi bond, will break by the addition of hydrogen atom. Now the hydrogen molecule, which is like this one, now these two hydrogen atoms will add, on these two carbon atoms by the breaking of this pi bond, and we will get what we will get in the presence of nickel 300 degrees Celsius temperature. We will get CH2. It was my main compound. Now the two hydrogen atoms, when we break this pi bond, then these two hydrogen atoms
will attach with these two carbon atoms. So it is hydrogenation, or you will say that it is an addition of hydrogen in the unsaturated hydrocarbon. Now the hydrogen molecule, its two atoms added to two carbon atoms, consecutive carbon atoms of the double bond by breaking the pi bond. ओके, पाई बॉन्ड तोड़ के दोनों हाइड्रोजन एटम्स मॉलिक्यूल के दोनों कार्बन के साथ अटैच हो जाएंगे. सो आप ये कह सकती हैं कि अब इस मॉलिक्यूल का जो फार्मूला है वो क्या बन जाएगा, CH3. नाउ डबल बॉन्ड इज lost and we are having a single bond between these two carbon atoms. So this is an addition of hydrogen molecule. This reaction is of very industrial importance. समटाइम्स शॉर्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड अबाउट दैट. एक शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है. तो इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ये है कि वेजिटेबल ऑयल जो कि अनसैचुरेटेड नेचर के होते हैं, उनके अंदर अगर हम निकल और प्लेटिनम वगैरह डाल के अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करें तो वी कैन गेट वेजिटेबल घी. सो जो घी हम इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली नॉट दैट नेचुरल घी, जो हम घी इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादातर इसी मेथड से बनाया जाता है. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट मेथड इज़ फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स. तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं. अल्काइल हैलाइड्स, अल्काइल आर ग्रुप को कहते हैं और हैलाइड एक्स ग्रुप को कहते हैं. एक्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो सकते हैं, और अल्काइल ग्रुप हमने पढ़े हुए हैं मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल और आगे भी जा सकते हैं. ठीक है. अब जो मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, और अल्काइल हैलाइड स्पेशली उनको कहते हैं जिनमें एक हैलोजन अटैच होता है विद दी अल्काइल ग्रुप. सो मिथाइल फ्लोराइड हो सकता है, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल आयोडाइड. जनरली वी यूज़ ब्रोमाइड एंड आयोडाइड ओके फॉर सच रिएक्शंस. ठीक है. और इसमें हम क्या करते हैं, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स हमारे पास दो मेथड्स हैं. पहले मेथड में हम अल्काइल हैलाइड को जिंक मेटल के साथ ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्वस एसिड. एक्वस एसिड, अब ये भी HX माइनस है, फॉर एग्जाम्पल HCl, HBr, कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू दिस X. ठीक है. जो ये X होगा, जैसे अगर ये ब्रोमीन है तो यहाँ पर जो हम हाइड्रोजन हैलाइड या एसिड लेंगे वो भी HBr होगा. ओके. नाउ RH प्लस व्हाट वी विल गेट, RH प्लस जिंक. तो क्या होगा कि X रिमूव हो जाएगा यहाँ से और इस X को ले जाएगा ये जिंक अलॉन्ग विद दिस X. ये दोनों X जिंक के पास चले जाएंगे. ठीक है. ये दोनों X किसके पास चले जाएंगे, जिंक के साथ अटैच हो जाएंगे एंड वी विल गेट जिंक हैलाइड. ठीक है. हमारे पास ये जिंक का हैलाइड यानी ZnX2 बन जाएगा. और जो आपके पास पीछे हाइड्रोजन बचेगी, ये हाइड्रोजन इस R के साथ चली जाएगी एंड वी विल गेट RH. RH स्टैंड फॉर, चूँकि ये अल्काइल है जिसमें एक हाइड्रोजन कम है, लेकिन अब इसमें एक H ऐड हो गई है, सो इट विल कन्वर्ट इनटू अल्कीन्स. ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये एक रिएक्शन है, जैसे सपोज करें ये मिथाइल आयोडाइड है. मिथाइल आयोडाइड में अब मैंने आपसे कहा है कि अगर हम जिंक डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड. अब एक्वस एसिड हमने कौन सा इस्तेमाल करना है, जिसमें आयोडाइड मौजूद हो. फॉर एग्जांपल इफ़ आई यूज़ H पॉजिटिव एंड I नेगेटिव. ये एक्चुअली HI है जिसको हम डिसोसिएट करके लिख रहे हैं बिकॉज इस सेड एक्वस एसिड इस्तेमाल करना है. तो एक्वा में एसिड प्रोटॉन फ्री रखता है. ठीक है. सो एक्वस एसिड की प्रेजेंस में अब क्या होगा, जिंक क्या करेगा, जिंक इस आयोडीन को, ठीक है, और इस आयोडीन को ले जाएगा अपने साथ अलॉन्ग विद जिंक. तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो क्या होगी, जिंक आयोडाइड बन जाएगा. अलॉन्ग विद जो आपके पास पीछे बचेगा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन फिर क्या होगा, ये हाइड्रोजन CH3 के पास चला जाएगा एंड वी विल गेट CH3HI. CH3 और H. ठीक है. तो ये आपके पास बन गया CH3 और H, यानी CH3 और H का मतलब तो CH4 ही हो गया. ठीक है. और ये जिंक आयोडाइड बन गया. ओके. इसी तरह अगर यहाँ पे हमारे पास ब्रोमाइड, ये कंपाउंड का नाम तो ज़रा देखें, 1 2 3 एंड 4. सो दिस इज़ ब्यूटेन. और कौन सी ब्यूटेन, 2-ब्रोमोब्यूटेन. सो 2-ब्रोमोब्यूटेन में ब्रोमाइड ग्रुप अटैच है. सो व्हाट वी विल यूज़, जिंक एंड वी विल यूज़ HBr. जब आप इनको मिलाएंगी तो जिंक ब्रोमाइड ZnBr2 बन जाएगा, यानी एक Br ये रिमूव हो जाएगा, एक Br यहाँ से रिमूव हो जाएगा एंड वी विल गेट ZnBr2 जिंक ब्रोमाइड अलॉन्ग विद. अब आपके पास जो अल्केन होगी जो कि ब्यूटेन थी, ठीक है ना, जो हमारे पास अल्केन थी वो क्या थी, ब्यूटेन थी. तो ब्यूटेन CH3 CH2
CH3, यहाँ पे 2 था और यहाँ पे आपके पास ब्रोमीन जो अटैच था उसके साथ क्या चला जाएगा, फिर H चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो H आएगा, ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगी, ब्यूटेन बन जाएगी। एक्चुअली CH2 ही है। ठीक है, सो ब्यूटेन आपके पास बन गई, यानी एक अल्केन बन गई आपके पास और उसके साथ साथ जिंक ब्रोमाइड बन गया। ठीक है, इसी तरह हम सेकंड मेथड ये है कि अल्काइल हैलाइड से उनकी हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे और उसके बाद वही हाइड्रोजन प्लेटियम और चारकोल की प्रेजेंट में जब हम हीट करेंगे तो ब्रेकअप हो जाएगी, यानी हाइड्रोजिनोलाइसिस। हाइड्रोजन मालिक्यूल और उसकी लाइसिस, उसकी ब्रेकडाउन हो जाएगी। अब हाइड्रोजन मालिक्यूल जो है वो टूटेगा और उसका एक पार्ट जो है अल्केन के अल्काइल हैलाइड के साथ चला जाएगा और एक हैलोजन H के साथ मिलकर HX बना देगी। कैसे कि ये जो हाइड्रोजन है ये इसका लाइसिस हो जाएगी, यानी इसका बॉन्ड क्लीवेज होगा। ठीक है, जब इसका बॉन्ड क्लीवेज होगा तो इस हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन, फॉर एग्जांपल अगर ये हाइड्रोजन है, ठीक है, और आपके पास ये RH है, ठीक है, तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन और X आपस में मिलके HX बना देंगे और बाकी जो R और H है ये मिलके अल्केन बना देंगे। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो नई कंपाउंड बनेगी वो होगी कुछ इस तरह, R और H प्लस H and Okay, so this is another method of preparation of alkanes from alkyl halides.